I would like to read that message before we start. So I will read it as it is in Maheshji's own words. On behalf of Jaina, I welcome everyone to our fourth lecture on Karma philosophy by Param Puchya Panyas Dr. Arun Vijayji Mara Sahibji. Since our Saturday lectures had a lot of time gap due to special programming of Paryushan Parva, I tried to summarize each class, thinking it would help everyone to get up to the speed, as there may be different people who just join each time. Hopefully from next class on, we will not need the summary since the classes will be held every week. In the past classes, Gurudev has described the vision of the universe as revealed by Mahavir Bhagwan through his Keval Gyan, and this vision did not have anything like a creator God. People try to understand the working of the universe by assuming the existence of Ishwar or Grahas or Vastu Shastra etc. And none of them can fully explain how the universe works and why differences exist among all of us. On the other hand, the working of Vayu Samay Karan that Mahavir Bhagwan revealed easily explains fully the reason for how, why, and who makes everything happens. The interaction of these 5 factors of time, destiny, karma, nature, and efforts makes things happen differently for each of us. In the last session, we learned the Jagat Swarup in the form of 5 Atishayas. There is 1 Jivatishay and 4 Ajivatishayas. The 4 Ajivatishayas are Akash, Akashastikai, Dharmastikai. Not Atishay, but Astikai. Astikai. Ji, Michhami Astikai. Vastikai. Ji. Michhami Dukkanam Gurudev. Akashastikai, Dharmastikai, Adharmastikai, Pudgalastikai. Kal is referred as a measurement entity and not as an astikai. Further, Pudgalastikai has 8 types of atom groups called Mahavarganas, spread out everywhere in the loka. They are Audharik Vargana, Vaikriya Vargana, Aharik Vargana, Bhasha Vargana, Shwasoswas Vargana, Mana Vargana, Tejas Vargana, and Karman Vargana or Karma Vargana. The Jiva Astikai uses these 8 Mahavarganas to make different forms of bodies depending upon which of the 4 gatis it has to go. The focus of all the rest of the classes in this series will be Karman Vargana. Through the study of the karma philosophy, we will know in details how and why the jiva or the jeev binds karmas, how a jeev can avoid karmas, and how the jeev can shed all those karmas and eventually become arihanta like Mahavir Bhagwan. So we humbly request Gurudev to show us the divine path. Thank you. And next we will have Guru Vandana by Elsa Ben Shah. Elsa Ben? Yes, thank you. Matyan Vandami, Sarji. Ichchami Khama Samno Vandiyu Jamani Jai Nisriyai Matyan Vandami. Ichchami Khama Samno Vandiyu Jamani Jai Nisriyai Matyan Vandami. इच्छकार सुवराई सुख तप शरीर निराबाद सुख संयम यात्रा निर्वहो छोजी स्वामी साता छेजी हाथ पानी न लाभ दे जोजी इच्छामी खमा समनो वंदियो जावणी जाय निस्सियाय वंदामी इच्छा कारण संदितो भगवान अभूत योमी अभ्यंतर रायम खामेउ इच्छम खामेमी रायम जंकीति अपत्यम परपत्यम भक्ते पाणे दिने वेयावत्ते आलावे संलावे उच्चासने समासने अंतर भाषाए उरी भाषाए जंकीति मध्य विनय परिहीन सुमुखवा वायरमवा
तुभ्ये जानम अहम न जानामि तत्समिच्छामि च फलम्। कर्मणाम तैति सुशानाम एक सायदा इच्छामि खमासमनो वन्दियो जावणिच्चाय निस्सियाय मत्तेन वन्दामि। इच्छा कारण संदिसौ भगवान वायना संदिसौ अंदिसा इच्छम इच्छामि खमासमनो वन्दियो जावणिच्चाय निस्सियाय मत्तेन वन्दामि। इच्छा कारण संदिसौ भगवान वायना लेशु तेजो इच्छम इच्छामि खमासमनो वन्दियो जावणिच्चाय निस्सियाय मत्तेन वन्दामि। इचकारी भगवान पसाई करी वायना प्रसार कराओ सोजी। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो बच्छायाणं नमो लोये सर्वसारणं येषु पञ्च नमो कारो सर्वभावप्रणाशनं मङ्गलानं च सर्वेषु परमं हवै मङ्गलम् जय जगजीव ज्योति वेयाणो जगगुरु जगानन्दो जगन्नाथ जगबन्धु जय जगत्पिता जय सुयाण भगवु तीर्थयाणं अपचिमो जय जय गुरुलोकानां जय महात्मा सच्चिदानंद संभवं विश्वज्ञं विश्वभावनं शंखेश्वर पुरोत्तम वासुनाथं नमाम्यहम् सर्वारिष्टगुणशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्री गौतम स्वामिने श्री सुधर्म स्वामिने अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। दर्पणा बहुत बहुत आशीर्वाद मत्तेन वन्दामि साईजी। दर्पणा बहुत आशीर्वाद। आप देख रहे हैं यहाँ पर इस चित्र के अंदर एक शरीर बना हुआ है, शरीर के अंदर एक चेतन आत्मा है। इसी आत्मा ने जो जो बाहर से जैसे जैसे एटम ग्रुप्स को महावीर स्वामी ने संज्ञा दी है वर्गणा। वर्गणा क्या है? जो डिफरेंट एटम्स का ग्रुप है उनके अंदर
समान गुणधर्मों वाले ऐसे परमाणु स्वयं इकट्ठे होकर के एक ग्रुप तैयार होता है, वो है वर्गणासा। अब वो जब वर्गणा बन जाती है तो उसको चेतन आत्मा अपने लिए उपयोग करती है। वर्गणा के एटम ग्रुप को लेकर के ही जीव कुछ बना सकता है, नहीं तो नहीं बनेगा कुछ भी। अब यहाँ क्या, ये है शरीर, आत्मा है। अब बाहर के जिन द्रव्यों का जो स्टडी किया आपने, ऑल दिस पंचास्तिकाय, अस्तिकायात्मक द्रव्य, इनके अंदर अस्तिकाय द्रव्य के अंदर एक ही जो है वो है जीवास्तिकाय, और बाकी के सभी जो है यहाँ पर ये आकाशास्तिकाय है, धर्मास्तिकाय है, अधर्मास्तिकाय है और पुद्गल। अब इनमें से सबको अपनी तरह से जो भी लेकर के बनाना है, तो पुद्गल के ही द्रव्य के अंदर ये परमाणु है। परमाणु को ही हमने एटम्स, अब ये एटम्स के जो ग्रुप बन जाएंगे साथ, अब एक ग्रुप यहाँ पर ये बन गया, इधर ये दूसरा ग्रुप ट्रेस हो गया तैयार। अब इस तरह से जितने ग्रुप आप देखेंगे बनते जाएंगे। अब ये सारे ग्रुप अलग अलग प्रकार के गुणधर्मों वाले बन गए। अब इन सब ग्रुप को, एटम ग्रुप को लेने वाला तो चेतन आत्मा ही। अब जब तक आत्मा नहीं लेगा वहां तक ये बाहर सब एटम्स है। अब एटम्स आर ऑलरेडी इन द infinite numbers, but particularly in this all the infinite numbers of atoms, if they have the common gundharma in each and every one, they will combine, they will join group. So due to that, this is the group of that. Then you can give the name of औधारिक वर्गणा, but the औधारिक वर्गणा चेतन आत्मा अपने कर्म के अनुसार लेकर के उसका स्ट्रक्चर तैयार करेगी, उसका नाम शरीर बनेगा। यही लेनी है सबको। अब कोई ये लेवे तो कोई दूसरे नंबर की लेंगे तो वो वैक्रिय वर्गणा है। अब वैक्रिय वर्गणा के पुद्गल परमाणु लेकर के देवता और नारकी जीव अपने शरीर की रचना करेंगे, और मनुष्य और तिर्यंच अपने शरीर की रचना औधारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु को लेकर के करेंगे, तभी जो है शरीर बनेगा सब। अब आप समझ लीजिए, दुनिया में अगर कोई भी शरीर बना है, कैसा भी शरीर बना है, तो वो केवल एकमात्र चेतन आत्मा ने ही बनाया। बिना जीव के संसार में कोई शरीर बन ही नहीं सकता है, नॉट पॉसिबल एट ऑल। अगर वो कोई भी कैसा भी बना दे, मान लो कि यही एक शरीर बनाया है, अब ये कौन जीव है, किसी ने भी अपना शरीर बनाया है। अब आप ये देख लो, तो ये इसके अंदर इसका जो जीव है, अब इसके ये पर्टिकुलर कर्म है। अब इस पर्टिकुलर कर्म को लेकर के ये जीव तिर्यंच गति में पंचेंद्रिय जलचर में जाकर के मछली के रूप में उत्पन्न हुआ। अब जीव जाकर उत्पन्न हुआ तो उसको भी वहां से यही औधारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु लेकर के अपना शरीर बनाना है। अब बिना इसके तो नहीं चलेगा। तो शरीर जो है, जो बन गया है, वो जड़ पुद्गल परमाणु में से लेकर के बना है, और बनाने वाला कर्ता चेतन आत्मा है। अब इस जीव के कर्म ऐसे थे, पर्टिकुलर तिर्यंच गति नाम के कर्म थे, उसने मछली का शरीर बनाया। अब हमारी आत्मा जब हमारा शरीर बनाएगी, तो हम अपना शरीर बनाएंगे,
तो ये अंदर जो है आत्मा ही है साहब। ये आत्मा कौन है? ये चेतन द्रव्य है। और पुद्गल क्या है? ये जड़ द्रव्य है। जड़ द्रव्य विच इज अनकॉन्शियस मैटर एंड द जीव इट इज द कॉन्शियस मैटर। अब ये कॉन्शियस मैटर के रूप में यही करता है। ये क्यों करता है? क्योंकि क्रिया करता है। ये जो क्रिया का कर्ता कारक है वही आत्मा है। अब क्रिया जो नहीं कर सकता है वो जड़ पुद्गल परमाणु है। तो जड़ अपने आप में निष्क्रिय हो गया और ये अपने आप में सक्रिय द्रव्य बन गया। तो चेतन आत्मा सक्रिय है, एक्टिव, एंड दिस इज नॉन एक्टिव। अब एक एक्टिव है, एक नॉन एक्टिव है। तो आप ये देखिए कि ये तो एटम ग्रुप्स तो बाहर है। In the last class, we have already learned that all types of atoms in the whole space, local, in the whole universe, you see, and they are just combining and being as a Vargana group, and they are respecting and they divine again in the form of the atoms. ये उनके अंदर की प्रक्रिया है, बनती रहेगी, बदलती रहेगी, चेंजेस होते रहेंगे, फिर बनेंगे, फिर बिखरेंगे, फिर बनेंगे, फिर बिखरेंगे, ये चेंजेस होते रहेंगे। अब ये होते होते इनके अंदर ये जितने हैं, तो यहाँ आत्मा के पास इसने क्रिया करके सक्रिय द्रव्य है, सक्रिय होने के नाते इसने क्रिया की। अब ये क्रिया करके बाहर से लेगा। अब लेने के अंदर ये पर्टिकुलर पुद्गल परमाणु जो है उसको ये लेकर, तो ये है श्वासोश्वास वर्गना। अब ये श्वासोश्वास लेने में काम आएगी। अब जैसे श्वासोश्वास वर्गना लेगा तब इसकी ब्रीदिंग चलेगी। अब इसी तरह से इसको ये पर्टिकुलर भाषा वर्गना के पुद्गल परमाणु लेने। अब भाषा वर्गना के पुद्गल परमाणु लेगा तब जाकर के वचन योग के रूप में भाषा बोल सकेगा, तब जाकर इसका बोलने चालने का व्यवहार होगा। सबके लिए है। अब जिन जीवों के अपने अपने कर्म हैं वो बोलेंगे तो अपनी भाषा वर्गना के पुद्गल परमाणु लेने ही पड़ेंगे, तभी बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। अब आपको यहाँ पर ये क्या देखना है पर्टिकुलरली, ये जो है इनको, इसको नाम दिया है मनोवर्गना के पुद्गल परमाणु। यू डोंट यूज द वर्ड माइंड। मन इज नॉट द आउटसाइड, but when the living being, the soul is taking that particular group of manovargana, then it will build up from that, that is called the mind. वो लेकर के बनाएगा तब जाकर के मन बनेगा। मन बनाया जाता है, मन बनता है, मनोवर्गना के पुद्गल परमाणु लेकर के मन बनता है, बनाया जाता है, आत्मा ही बनाएगी। That's why the soul is not the mind and mind is not the soul. The soul is totally different from the mind and mind is totally different from the soul. आत्मा बनती नहीं है. So there is not such type of raw material for the soul, but there is a such type of raw material for the mind. The soul can take that particular मनोवर्गना के पुद्गल परमाणु लेकर के आत्मा मन बनाएगी, और सभी नहीं बनाएंगे। पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगनी, पंचेंद्रिय, ये लोग जीव, ये जीव अपनी तरह से मन नहीं बनाएंगे। लेकिन जो संगनी पंचेंद्रिय वाले मनुष्य, देवता, नारकी आदि पशु पक्षी है वो जरूर बनाएंगे। उनको मनोवर्गना के पुद्गल परमाणु लेकर बनाना ही पड़ेगा। ये हम यहाँ पर पर्टिकुलर तेजस वर्गना के पुद्गल परमाणु है। अब ये 7th नंबर पर है, तो ये पर्टिकुलर पुद्गल परमाणु की आत्मा को ही लेना है और ले करके वो शरीर के अंदर अपना टेम्परेचर बढ़ाता है। टेम्परेचर 96 डिग्री तक का लेवल बना करके रखता है। देन व्हाटएवर यू आर ईटिंग इट कैन बी डाइजेस्ट इन योर बॉडी। तो ये किसके कारण हो रहा है? तेजस वर्गना के।
So such type of atom group is already available in the whole sky. So everybody can take this. अब लास्ट में कौन से बचे हैं? ये 8 नंबर के जो है ये कार्मिक एटम्स है। हम इसको नाम दे रहे हैं यहाँ पर, ये पर्टिकुलर जो है कार्बन कर्म बाहर नहीं है। Don't use the word karma, but these are the karmic atoms. When it is the group of atoms, you can use the particular noun for this. This is the karmic atom. So these karmic atoms, it is also available everywhere in this group. अब आत्मा उसको लेगी और लेने के बाद अब वो उसके साथ में जब ये आत्मा के साथ एक रस कर देगी, अब इसका नाम कर्म बनेगा। The ladies can understand easily. There is a wheat flour in your box. Then when you will take that particular wheat box flour, then you will just bind it with the water. Then you bake it as a chapati or roti, whatever it is. But before that, it is as a atta. It is as a wheat flour powder. But if you will take and mix up with the water and then give the shape and then on the fire you will make it, then it becomes as a chapati or roti. Same like that here, the karmic atoms are as a wheat flour powder. Then you have to take inside the soul, and then you will mix up with the soul, and then it becomes as a karma. Now it is as a karma, but before it is only the karmic atoms. उद्गल परमाणु के रूप में ही है, वो कार्बन वर्गना है और संसार में सबको लेना है, कंपल्सरी है। अब क्या हुआ सा, शरीर भी बनाना है, मन भी बनाना है, इंद्रियां भी बनानी है और वचन योग की भाषा भी। तो इस सब के लिए पर्टिकुलर कर्म अलग अलग हो गए सर। अब ये कर्म आपके लिए, ये कर्म अलग है, ये कर्म अलग है, ये सब कर्म अलग अलग कर्म बनते जाएंगे। अब ये एक कर्म हो गया, ये एक कर्म हो गया, तो ये पर्टिकुलर कर्म अब अंदर आत्मा के अंदर आकर के डिवीजन बनते जाएंगे। अब वो डिवीजन बनेंगे तब इस कर्म को अलग नाम देंगे, इस कर्म को अलग नाम देंगे, सब कर्मों को अलग अलग नाम दे करके हम कर्म के रूप में पहचानेंगे उसको। तो भगवान महावीर स्वामी ने या उनके पहले आप सोचिए आदिनाथ भगवान ने, अब जिनको केवल ज्ञान केवल दर्शन था, उन्होंने आत्मा के साथ में इन प्रकार के कर्मों को देखा। अब उसका कर्म शास्त्र के रूप में एक पूरा निरूपण किया। उत्तराधीन सूत्र एक आगम शास्त्र विच इज द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड महावीर स्वामी। तो 36 चैप्टर्स के अंदर एक 33वां चैप्टर उन्होंने स्पेशली कर्म शास्त्र का दिया है, उसका नाम रखा है कम्म पैड़ी अध्ययन। अब वो जो कम्म पैड़ी अध्ययन है उसमें महावीर स्वामी ने कहा बहुत डिटेल के अंदर जो है कर्म शास्त्र की बातें बताई। अब इसके आधार पर, इसके बेस पर जो है बहुत से सारे ग्रंथ शास्त्र आगम जो बने हैं, उनके अंदर डिटेल के अंदर कर्म के नियम, कर्म के विभाजन करके एक एक प्रकृति सब काफी कुछ बताई गई। ये सब कर्म शास्त्र की डिटेल स्टडी है। And we are trying to understand here this karma philosophy. Why should we learn this karma philosophy? Because it is the living knowledge. एक जीवंत विद्या है जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में डे टू डे लाइफ में एवरी मिनट ये उपयोगी है, बहुत काम की है। साहब क्यों काम की है? हम कुछ भी बोलेंगे तो भी कर्म बंधेगा कि नहीं, हम विचार भी सोचेंगे, विचार करेंगे तो भी कर्म बनेंगे कि नहीं, हम जो है फिजिकल एक्टिविटीज हमारी जो भी करेंगे तो कर्म बनते हैं कि नहीं बनते हैं। अच्छा कर्म बनते हैं तो उसमें अच्छे कर्म बनते हैं कि खराब कर्म बनते हैं, शुभ भी बनते हैं कि अशुभ भी बनते हैं। तो शुभ बनेंगे तो शुभ का रिजल्ट क्या होगा, अशुभ बनेंगे अशुभ का रिजल्ट होगा। तो ईच एंड एवरी लिविंग बीइंग इन द होल यूनिवर्स,
wherever it may be, but they are doing all types of activities. फिजिकल एक्टिविटीज में खाना पीना आहार निद्रा आदि सब आ गई। मेंटल एक्टिविटीज के अंदर सोचना विचार करना आ गया। आर यू थिंकिंग इन द राइट वे और यू आर थिंकिंग इन द रॉन्ग वे? अब आपके अंदर जो है क्लेश, कसाय, राग, द्वेष, काम, क्रोध, विषय, वासना, सेक्सुअल डिजायर्स एंड एवरीथिंग इज इनसाइड। कहाँ है वो सब चीजें? नॉट इन द बॉडी, लेकिन वो अंदर किसके अंदर है? दैट इज ओनली ऑन द सोल। अब वो सिर्फ चेतन आत्मा पर है, शरीर पर नहीं है। नॉट द सिंगल कार्बनिक एटम, इट इज कनेक्टेड विद द बॉडी और माइंड, नॉट एट ऑल। सो माइंड इज एब्सोल्युटली डिफरेंट थिंग, द बॉडी इज आल्सो टोटली डिफरेंट थिंग। वचन युग आपका बिल्कुल अलग ही है। तो ये कार्मिक एटम्स जो भी आएंगे, ये कार्मिक एटम्स आपकी बॉडी पर नहीं लगेंगे, ये कार्मिक एटम्स आपके माइंड पर नहीं लगेंगे, बिकॉज माइंड इज आल्सो मेड फ्रॉम द मेंटल माइंड एटम्स ग्रुप्स। तो वो भी जड़ है, वो भी जड़ है, ये भी जड़ पुद्गल है, ये भी जड़ पुद्गल है। तो इसमें से कुछ नहीं लग रहे सर। अब आपको क्या देखना है? फिजिकल स्ट्रक्चर हमारा, तो शरीर तो सबका है। शरीर है तो आपको खाना पीना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अब आप खाने पीने में क्या खा रहे हैं, कैसा खा रहे हैं? क्या किसी जीव को मार करके खा रहे हैं? आर यू ईटिंग द एग्स? आर यू ईटिंग द चिकन्स? आर यू ईटिंग द मैगी? आर यू ईटिंग एनी पोटैटो? अब उसके अंदर महावीर ये कह रहे हैं, प्लीज आप जरा खाने के पहले देख लो। अब उसके अंदर कोई ज्यादा मैक्सिमम जीवों की हिंसा से अगर ये खाद्य पदार्थ बना है, तो आप भी उसके भागीदार है, आप भी उसके निमित्त है, तो आपको भी कर्म बंध होगा। अब ये सारी बातें हम जो जोड़ रहे हैं, वो यहाँ इसके साथ जोड़ रहे हैं। ये कर्म फिलोसॉफी हम सीख रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि इट इज द लिविंग नॉलेज, एक जीवंत विद्या। कहने का पर्पस क्या है? वी शुड लर्न दिस थिंग। अगर हम इसको नहीं जानेंगे, नहीं समझ पाएंगे, हम अपने शरीर के लिए खाते पीते रहेंगे। हम अपने शरीर के लिए अगर जो है यही खाते रहे, यही पीते रहे, तो फिर हम अपनी आत्मा का विचार नहीं कर पाएंगे। हम रात दिन डे एंड नाइट वी आर थिंकिंग ओनली अबाउट अवर बॉडी, अबाउट अवर फिजिकल स्ट्रक्चर। वी आर नेवर थिंकिंग अबाउट अवर ओन सोल। हम अपनी आत्मा के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे, कुछ भी नहीं विचार कर रहे। What the Mahavir says that your physical body is not binding any type of karma. Your only the soul is bounded by the karma. शरीर के साथ में कोई कर्म नहीं। Always you are taking the bath with rubbing the soap. तो फिर रोज आप स्नान करोगे तो रोज सब कर्म का क्षय हो जाएगा, कर्म निकल जाएंगे, कर्म भी पानी में साबुन से धो जाएंगे। बट इट इज नॉट हैपनिंग एट ऑल, बिकॉज कर्म सीधे आकर आत्मा के साथ बंध रहे। अब आत्मा कर्म के साथ बंध रही है, तो फिर उसका शुभ या अशुभ रिजल्ट भी आत्मा को ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी इज द पेरिशेबल थिंग बट द सोल इज इम्पेरिशेबल, सोल इज परमानेंट। आत्मा तो बिल्कुल शाश्वत है, परमानेंट है, त्रिकाल नित्य है। शरीर भले ही नित्य नहीं है तो क्या हो गया, लेकिन सबसे पहले हम लक्ष्य बना लें कि हम देह लक्ष्य नहीं है, हम शरीर के लिए नहीं जी रहे हैं, हम अपनी आत्मा के लिए जी रहे हैं। आत्मा लक्ष्य बन करके जीवन जीना है, शरीर लक्ष्य बन करके जीवन नहीं जीना है। क्यों नहीं जीना है? तो सर हो सकता है हम अपनी आत्मा के लिए थोड़ा भोग दे करके, शरीर का भोग दे करके आत्मा की साधना साधने का प्रयत्न करें, तो हम आस्तिक है, आत्मलक्षी है, आध्यात्मिक है, आत्मार्थी है आप। और अगर आप आत्मार्थी नहीं है तो मात्र आप शरीर के लिए जीवन जी रहे, तो शरीर के लिए तो फिर खाना पीना आहार निद्रा भय मैथुन सिर्फ यही रहेगा, फिर कुछ भी नहीं रहेगा। और उसके पीछे अगर हम कर्म बांधते ही गए, अब कर्म बांधते ही गए तो आत्मा का क्या होगा, ये हम यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं।
अब ये आपको ख्याल आ जाए, थोड़ी हम यहाँ पर आत्मा की बात कर लेते हैं। What the soul is, what type of the soul is। तो ये आप पहले ये देखेंगे कि आत्मा का स्वरूप इस समय कैसा है। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि आत्मा के स्वरूप के बारे में मथेनंदानी बाप जी, बीच में बोलने के लिए माफी चाहूंगी। आज थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ज्यादा आ रहा है, तो कुछ लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है। तो आप श्रावक जी वहां जो खड़े हैं, आप शायद थोड़ी सी विंडोज बंद कर लेंगे तो ट्रैफिक का आवाज थोड़ा कम हो जाएगा। जी मथेनंदानी। विंडोज तो बंद है सब। कुछ लोगों के मैसेज आ रहे हैं बाप जी कि पीछे का नॉइज बहुत है, तो क्लियरली नहीं सुनाई दे रहा है। अब शायद ठीक लग रहा है। सविता जी, I think it is pretty clear on my end, but that might be on their end too. नहीं, even I can hear. Okay, I got it. जी, Thanks. जी। Now जी अभी हाँ, नहीं, जैसे ही आपका बोलना शुरू होता है तो पता नहीं फोन में से आवाजें आ रही है, जैसे ऐसा लग रहा है कि all windows are closed, doors are also closed, no fan and nothing, no थोड़ा mobile। साहब जी, डिस्टेंस थोड़ा વધારીએ ना आपका और माइक के बीच में का, तो शायद ठीक है जी। थोड़ा गुरुदेव, हम दूर कंटिन्यू कीजिए। करते हैं। हाँ। जिनको सुनाई दे रहा है अच्छे से, उनको बहुत अच्छी बात है, हम कंटिन्यू रखेंगे। जी जी। हाँ, तो हम यहाँ पर आत्मा की बात कर रहे हैं। Now I want to announce that if you want to study about what type of the substance the soul is, please, there are some different classes for this purpose also. So the day after tomorrow, on the Monday and Tuesday, there are the 2 classes of the Jain physics and metaphysics. So already this will be the 2 classes. Those who want to study about that, you can study, because in that there are the subjects of Dravyanuyog, Padartha Vignan hai. So what type of the space, the soul and Dharmastika, Adharmastika and Putgal is. So that subject is totally different. And here we are running only the karma philosophy, the theory of karma philosophy. In these classes, we have to study about the karma. And there are some different classes in the Gandharva. Every Monday and Saturday, we are learning how the soul is existing or not. So that is before 1 hour, the 7 to 8, you see. Those who want to join, you see, they can join this. अब यहाँ पर ये जो हम बता रहे हैं कि एक चेतन आत्मा द्रव्य है, और ये जो चेतन आत्मा है, अब सबसे बड़ा गुण इसके अंदर जो है वो है ज्ञान का। दूसरा गुण है वो इसके अंदर दर्शन का है। तीसरा गुण इसका जो है वो चारित्र का है। चौथा गुण जो है वो है अनंत वीर्य, शक्ति का है। ये 5वां गुण है कि आत्मा अनामी है, आत्मा अरूपी है, आत्मा निरंजन निराकार है। ये 6ठा गुण स्पेशली है, अगुरु लघु है। सातवां गुण जो मुख्य है, ये वैसे अव्याबाद स्वरूप है। अब आप इसको अनंत सुख भी कहते हैं। और ये 8वां गुण है अक्षय स्थिति। हाँ जी, सविता जी आप पढ़ सकते हैं। कैन यू रीड?
जी जी गुरुदेव। ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, दर्शन, चारित्र, वीर्य, अनामी, अरूपी, निराकार, अगुरु लघु, अव्याभात, अनंत सुख, अक्षय स्थिति। Very good. Up, these are the specially 8 virtues. This is the basic property of the soul. आत्मा के ये अपने खुद के गुण हैं। अब बिना गुणों का द्रव्य होता ही नहीं है और बिना द्रव्य के गुण रहता ही नहीं है। ये उसके लिए अपना बिल्कुल संबंध है। तो यहाँ चेतन आत्मा है, आत्मा द्रव्य है, तो द्रव्य के गुण निश्चित रूप से होते हैं। अब बात कहाँ है कि ये गुण जब आत्मा के पूर्ण रूप में प्रकट हो जाए तब यहाँ पर जो है हम इसके साथ में ये अनंत शब्द लगा रहे हैं। आत्मा का ज्ञान कितना है? अनंत ज्ञान है। अब अनंत ज्ञान के अंदर प्रमाण कितना है? तो अनंत शब्द दिया। आत्मा का दर्शन कितना है? ये अनंत है। आत्मा का चारित्र कितना है? ये भी अनंत चारित्र है। आत्मा के अंदर उसकी शक्ति कितनी है? ये आपको दिया है, अनंत वीर्य शब्द दिया है। अब जब आत्मा के गुण पूर्ण रूप में प्रकट हो जाए तो आत्मा ही परमात्मा है। यही आत्मा परमात्मा है, यही आत्मा सिद्ध आत्मा है, यही आत्मा शुद्ध आत्मा है। यू कैन यूज द डिफरेंट नेम्स फॉर दैट। आप शुद्ध बोलेंगे मतलब क्या? संपूर्ण शुद्ध है। आप ये सोचेंगे कि इतने गुण जो है मतलब पूर्ण गुण रूप में प्रकट हो गए हैं, तो पूर्ण आत्मा बोल सकते हैं, आप परमात्मा शब्द बोल सकते हैं। अब आप जो है अंतिम कक्षा में सिद्ध आत्मा शब्द बोल सकते हैं। लेकिन आज हमारी स्थिति क्या है? एट प्रेजेंट हमारी स्थिति ये है कि ये हमारे गुण जो है आवरणीय कर्म से ढके हुए हैं। तो जिसके कारण हमारे गुण ढक जाते हैं, ये हमारे गुण ढकने के बाद में अब जो है ये कर्म की संज्ञा बन गई सर। अब यहाँ इसको हमने ये कर्म नाम दिया, ये कर्म की संज्ञा बन गई। दिस कर्म, इट इज जस्ट टाइप ऑफ द लेयर। You see, in your building, in your room, there is the wall, and on the wall you have done that color. The layer of the color, it may be dark green or black or red or orange or blue, whatever it may be. Same like that. Here is all this karma. So due to that karma, the virtues of the soul, it is just covered. अब ये ढक गए। इधर देखिए आप, ये गुण आपके अंदर जितने थे, अब क्या हुआ? यहाँ पर आपको सब क्या दिख रहा है? अब आप देख रहे हो, अब ये सब जो है ये कर्म के आवरण आकर के ढक गए। आत्मा तो वही है अंदर, आत्मा का कोई फर्क कुछ नहीं, आत्मा एज इट इज है। अब मैंने बिफोर जस्ट 2 मिनट मैंने सब नाम लिखे थे आत्मा के गुण के, अब ये ढक गए। ठीक सेम लाइक दैट। आपको देखिए मैं बोल रहा हूँ, यू आर लुकिंग माई फेस, बट इफ आई विल कवर माई फेस विद द क्लॉथ्स, then now you will not able to see my face, but you will see only the cloth. Same like that, this karma are the layer on the soul. अभी मैंने आपको बताया था कि कर्म शरीर पर नहीं लगते हैं, कर्म मन पर नहीं लगते हैं, कर्म इंद्रियों पर नहीं लगते हैं, कर्म वचन पर, जीभ पर नहीं लगते हैं। ये कर्म सिर्फ और सिर्फ आत्मा पर ही लगते हैं। इसलिए ये कर्म सारे आवरण के रूप में आ गए साहब। अगर शरीर पर लग जाते कर्म तो अभी आप जो है उसको स्नान करते समय साबुन से धो देते, चले जाते। लेकिन अब ये तो आत्मा के ऊपर है। अब इसको माइन्यूटली अंदर डिटेल करिए साहब। अब एक एक अंदर डिटेल करेंगे। ये पर्टिकुलर कर्म कैसा है,
अब अंदर खोलने पर आपको पता चलेगा एक एक अंदर जो है ये कितनी कर्म प्रकृतियां अंदर हो गई, तब जाकर के आपको ख्याल आएगा। अब ये ज्ञानावरणीय कर्म नाम दिया गया है। अब ये पर्टिकुलर कर्म का नाम दिया, क्यों नाम दिया हमने? जो कार्मिक एटम्स आत्मा प्रदेशों में आकर के आत्मा के ज्ञान गुण को ढकता है, दैट इज कॉल्ड ज्ञानावरणीय कर्म। आप बोलेंगे चंद्र कुमार जी जैन, आप वापिस रिपीट कर सकते हैं? चलिए ठीक है। अब ये आपको समझ में आ जाए कि हमने ज्ञानावरणीय कर्म का नाम दिया है, तो ज्ञान गुण के ऊपर जो आवरण चढ़ गया है वो ज्ञानावरणीय कर्म बन गया है। अब इसी तरह से एक एक आकर के, अभी से दिस इज द क्लॉथ, इफ आई एम कवरिंग माई हैंड्स, इफ आई कवरिंग माई फेस, इफ आई कवरिंग माई लेग्स, तो क्या होगा? अलग अलग नाम देंगे ना आप। तो इसी तरह से यहाँ पर ये एक कर्म बन गया, यहाँ पर ये पर्टिकुलर ज्ञानावरणीय कर्म विच कवर्स योर नॉलेज। अब ये अंदर, लेकिन ये मैंने अलग अलग अंदर जो बनाई है, ये क्या है? अंदर की डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द ज्ञानावरणीय कर्म। यू आर लुकिंग द पर्टिकुलर ट्री, but the trunk is one, but the branches are different, and sub branches are more different. Same like that, this is the one karma and there are some different branches of the karma. अब उसको डिटेल से हम स्टडी करेंगे। अभी ये क्या हुआ है? सेकेंड वन, ये आप देखेंगे, ये अंदर जो है कर्म की प्रकृतियां, अब इसके साथ में इसका यहाँ पर नीचे कौन सा गुण था और किस गुण को इसने दबा दिया है, ये आप समझ सकते हैं। बोलेंगे आप नाम? ये दर्शन गुण को, इसके नीचे कौन सा गुण था? दर्शन। वेरी गुड। अब इसका नाम दीजिए, ये दर्शनावरणीय कर्म। जो गुण जो है जिस आवरण से, कर्म के आवरण से ढक जाता है, अब वो दर्शनावरणीय कर्म बन गया। अब ये कैसे हो गया, क्यों हो गया, इसकी डिटेल स्टडी हम करेंगे। अब यहाँ पर ये तीसरा गुण कौन सा था? चारित्र। हाँ, ये चारित्र गुण था। अब इसके ऊपर ये कार्मिक एटम्स यहाँ पर आकर के लग गए, तो ये सब अलग अलग डिवीजन बन रहा है। अब ये सब ब्रांचेस बनती जा रही है और इन सब ब्रांचेस के कारण अब ये हमारा जो कर्म बन गया, अब इसका नाम अलग दिया है मोहनीय कर्म। जी हाँ, अब आप लोग ख्याल आ रहा है, एक मोहनीय या चारित्रावरणीय भी कह सकते हो, द सेम थिंग है। जो हमने बेसिक प्रिंसिपल बनाया उसके हिसाब से बन सकता है, लेकिन इसको मोहनीय कर्म एक स्पेशल नाम दिया और शॉर्ट फॉर्म करेंगे तो मोह कर्म बोल दीजिए साहब। ये कर्म हमारे जीवन के व्यवहार में आया। अब इधर आप देख रहे हो, ये कर्म चौथा बन रहा है। इधर ये कर्म की प्रकृतियां सामने आ गई, ये जैसे बनी है और इसके हिसाब से आप देखिए तो ये कर्म की प्रकृतियां आ गई। अब इसका नाम दिया है अंतराय कर्म। ये चौथा बन गया। ये पहला हमने नाम दिया था, इधर दूसरा नाम दिया, ये तीसरा है, ये चौथा है, अंतराय कर्म बन गया। अब जिस जिस प्रकार से जो जीव जैसी कर्म प्रवृत्ति करेंगे वो उस हिसाब से वैसे कर्म बांधते जाएंगे। अब कर्म बांधेंगे तो अंदर भी डिवीजन होकर के एक एक विभाग में जा करके अलग अलग तरह से बनते जाएंगे। अब ये कर्म बन गए। इधर आपने ये नाम देख लीजिए,
अब यहाँ पर ये कर्म की प्रकृतियां आ गई। अब इस कर्म का नाम भी अलग से हम देंगे, क्योंकि ये आरोपी था और उसका नाम दिया हमने, ये बन गया नाम कर्म। अब यहाँ पर ये गुण जो था आत्मा का, अब इसके ऊपर ये कर्म का आवरण आया। अब जिस तरह से ये भी एक कर्म अंदर बन गया, इसका नाम आपने दिया है ये गोत्र कर्म। ये आत्मा का गुण था और इसके अंदर अब ये कर्म प्रकृतियां बन गई था। अब जैसे जैसे हमने कर्म उपार्जन किए हैं और इस प्रकार के कर्म को उपार्जन करने से ये सातवां कर्म बन गया है वेदनीय कर्म। अब आत्मा का ये गुण जो था, अब इसके ऊपर ये कर्म की प्रकृतियां बन गई। अब इसका नाम जो है बन गया। ये बन गया यहाँ पर आयुष्य कर्म। हाँ जी, 8 गुण थे और 8 गुणों पर ये आवरणीय कर्म लग गया। अब ये कर्म बन गए अलग अलग। अब आपको समझ में आ सकता है, देख सकते हैं किस गुण के ऊपर कौन से आवरण आने से किस नाम का कर्म बन गया था। थोड़ा सा होमवर्क करेंगे, आप बोलेंगे किसको पूछे, गुण भी बताना है, आवरण आया है उससे बना हुआ कर्म है वो भी बताना है। दोनों नाम बोल सकेंगे सर? प्रफुल्ल भाई, थोड़ा अनम्यूट करके बोलिए, आपको भी जरा, आपको भी याद आएगा ना, समझ में आ जाएगा। आप म्यूट पे है प्रफुल्ल भाई, आप यूर ऑन म्यूट, आपको अनम्यूट करिए। आई कैन डू इट, होल्ड ऑन। हाँ ओके। मथेण वंदामी। ज्ञानावरणीय कर्म से ज्ञान पे जो आवरण लग गए होते हैं, जिसे ज्ञानावरणीय बोलते हैं। प्लीज यूज द सेंटेंस लाइक दिस, आत्मा के ज्ञान गुण पर आए हुए आवरणीय कर्म का नाम ज्ञानावरणीय। लाइक दिस यू कैन मेक द 8 सेंटेंसेस। ओके। आत्मा के कर्म पे, आत्मा का जो गुण है ज्ञान, उसके पे जो कर्म आए हुए उसे ज्ञानावरणीय कर्म बोलते हैं। आत्मा का गुण जो दर्शन है, वो उसके पे जो कर्म लगे हुए हैं उसे बोलते हैं दर्शनावरणीय कर्म। उसी तरह आत्मा के जो मोहनीय, आत्मा के जो ज्ञान दर्शन चारित्र, आत्मा का जो चारित्र गुण है उसके पे जो गुण लगे हुए हैं उसे बोलते हैं मोहनीय कर्म। उसी तरह आत्मा के जो गुण है वीर्य, उसके पे जो गुण लगे हुए हैं उसे बोलते हैं अंतराय कर्म। आत्मा का गुण जो अनामी है, उसके पे जो आवरण लगे हैं उसे बोलते हैं नाम कर्म। आत्मा के जो गुण है वो उसका जो गुरु जी आप बताइए, उसके गोत्र कर्म के नीचे कौन सा है वो जो उसके पे अक्षय नहीं, गोत्र कर्म किसके पे लगे हुए थे, कौन से गुण पे, आत्मा के कौन से गुण पे गोत्र कर्म? अगुरु लघु पे, अगुरु लघु पे जो गुण लगे हैं, जो लेयर लगे हैं उसको बोलते हैं गोत्र कर्म। उसी तरह आत्मा के जो साता बोलते हैं या उसके पे जो लगे हैं आवरण, उसको बोलते हैं वेदनीय कर्म। और आत्मा के जो गुण है
कि उस वो गुण लाइफ उसके पे जो है उसको आयुष्य करना बोलता है। चलो फिर भी गुड एफर्ट, नो डाउट। अशोक जी जैन, आप बोल सकेंगे? ट्राई टू योर बेस्ट। आपने अगर कुछ ध्यान दिया है, मतलब मेरा पूछने का कोई रीजन नहीं है कि आपको समझ में आना चाहिए, बस। वंदना गुरु जी। सो जो ज्ञान का आत्मा का गुण है, उसके ऊपर जो आवरण आ गए हैं उनको हम ज्ञानावरणीय कर्म कहते हैं। वेरी गुड। हाँ, आत्मा के जो गुण है, दर्शन गुण है, उसके ऊपर जो आवरण आ गए हैं उसको हम दर्शनावरणीय कर्म बोलते हैं। आत्मा के चरित्र गुण पे जो कर्म आ गए हैं उनको हम मोहनीय कर्म बोलते हैं। आत्मा के वीर्य गुण के ऊपर जो आवरण आ गए हैं उनको हम अंतराय कर्म बोलते हैं। आत्मा के जो रूपी गुण है उनके ऊपर जो आवरण आ गए हैं उनको हम नाम कर्म बोलते हैं। आत्मा के अगुरु जो लघु गुण हैं उनके ऊपर आवरण आ गए हैं उनको हम गोत्र कर्म बोलते हैं। आत्मा के जो अव्ययवाद सुख के गुण हैं उनके ऊपर कर्म जो आ गए हैं उनको हम वेदनीय कर्म बोलते हैं। और आत्मा के ऊपर, ये जरा मेरे को याद नहीं है अभी, ऊपर जो गुण के ऊपर कर्म आ गए हैं उनको हम आयुष्य कर्म बोलते हैं। वेरी गुड। बट you have completed the 7, but last one you say, so your prize is not coming, no doubt, but your effort is good, no doubt. हाँ जी, अब सबको ये ध्यान देना है, and please write down, आप with the diagram also, आत्मा के गुणों का हमको बरोबर स्पष्ट ख्याल होना अनिवार्य है, क्योंकि कर्म का the functioning portion of the karma just to cover the virtues of the soul. कर्म का काम क्या है? आत्मा के गुणों को रोकना, आत्मा के गुणों को विपरीत करना, आत्मा के गुणों को कम करना, आत्मा के गुणों को फिर कम करके प्रकट करना। We will learn about everything in detail, but first of all you must learn that particular 8 division of the virtues and the 8 types of karmas. बस ये 8 ही आत्मा के मुख्य गुण है, और ये इन गुणों को ही ढकने वाला जो है वही कर्म है। ऐसा कर्म का हमको ख्याल आ जाएगा। अब ये सब डिविजनल कर्म प्रकृति है। सविता जी, आई एम रिक्वेस्टिंग टू स्टडी दिस सब्जेक्ट फॉर द 1 year. It will take 1 year, but you have some limited Saturdays, and today is the 4th Saturday, and you have taken only the 12 Saturdays for this. So just you see, I'm trying my best to explain this karma theory, but one by one, if you will understand in detail, it will take 1 or 2 years. Another classes we are running for the 1 year course, you see. So आप जो है उसमें अच्छी तरह से अगर ये स्टडी कर सकोगे, तब हमको ये ख्याल आएगा कि हम किस किस प्रकार के कैसे कैसे कर्मों के बारे में हम स्टडी करते हैं, किन कर्मों को समझना है। और ये हमारे सबके अपने अपने कर्म हैं, मेरे भी कर्म है, आपके भी कर्म है, सबके कर्म है। अब परसेंटेज वाइज सबके कर्मों के अंदर मात्रा कुछ कम ज्यादा, किसी के कम है, किसी के ज्यादा है, किसी के कौन से, किसी के कितने हैं। ये अभी हमने 8 नंबर्स देखे, 8 नंबर के 8 कर्म। अब ये आत्मा के मुख्य गुण है। अब मैंने पहले कहा है कि भी शरीर पर तो लगते ही नहीं, लेकिन अब इसमें से कौन सा कर्म जो हमारा शरीर बनाएगा, कौन सा कर्म हमारा स्किन का कलर बनाएगा, कौन सा कर्म किस गुप्तकुल में आपको जन्म देगा, कौन सा कर्म हमारे डिजीज और बीमारियों में कारणीभूत बनेगा, कौन सा कर्म हमारे रिलेशंस को जोड़ेगा, कौन सा कर्म हमारे रिलेशंस को बिगाड़ेगा, कौन सा कर्म हमारे नेचर को खराब करेगा, कौन सा कर्म हमको ज्ञान के अंदर वीक करेगा, और कौन सा कर्म किसके लिए ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो क्या होगा। Why the people become the mentally retarded? Why the child become as a dumb and deaf? Why the persons become blind? You see, सब का उत्तर जो है महावीर इन कर्मों के अंदर ही दे रहे हैं। This is not only for Jains, but it is universal
theory, uniformal and universal for all the living beings. सबके लिए एक ही theory है. Either he may be the animal, or he may be the heavenly deities, or he may be the human being, you may be the ants and bees, or whoever so may be, all the living beings. केवल ज्ञानी भगवान ने जगत के समस्त जीवों के लिए ये मेथड बताई है. महावीर ये नहीं कह रहे कि आप ग्रहों के कारण सुखी हो रहे हो. महावीर ये नहीं कह रहे कि आप वास्तु के कारण सुखी हो रहे हो. महावीर ये नहीं कह रहे कि आप देवी देवताओं के कारण सुखी हो रहे हो या दुखी हो रहे हो. महावीर कह रहे हैं कि आपके शुभ कर्मों के कारण आप सुखी बन सकते हो. अशुभ कर्मों के उदय में आने से दुखी बनेंगे. अब दुख कितने प्रकार का है या रोग बीमारियां क्यों हैं? अब हजारों प्रकार के हैं भाई साहब. कितने प्रकार की रोग बीमारियां दुनिया में, कितने प्रकार के कैसे हैं, कितने प्रकार के कर्म है. तो जितने प्रकार के कर्म है तो संसार में जीव कितने हैं साहब, और सबको जाकर अपना अपना शरीर बनाना है. तो सबके शरीर बनाने वाले कर्म एक डिवीजन में आ गए. इसमें इस कर्म के नाम कर्म के डिवीजन में शरीर बनाने वाले कर्म आ जाए. इधर मोहनीय कर्म के डिवीजन में हमारा नेचर बन रहा है. अब कौन क्रोध वाला है, कौन मान माया वाला है. अब किसी की शादी भी होती है तो मोहनीय कर्म, और किसी की मैरिज होने के बाद डाइवोर्स भी होता है तो मोहनीय कर्म के कारण होता है. अब कौन से कर्म कैसे हैं ये सब हमारा है, हमको डिटेल में स्टडी करना है. तो हमारे पास जितने भी दिन बचे हैं वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. लेकिन मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कर्म की बुक्स भी अगर आपको मिलती है, मेरी भी कर्म की लिखी हुई बुक नाम है कर्म तणी गति न्यारी. इट इज आल्सो अवेलेबल इन द ई लाइब्रेरी एंड जैनाज ई लाइब्रेरी है आल्सो द 2 टाइप्स ऑफ बुक. हिंदी में भी अवेलेबल है, गुजराती में भी अवेलेबल है. आपके वहां पर भी आप जैना की लाइब्रेरी में से या ई लाइब्रेरी में से लोड करके आप जो है उसको पढ़ेंगे, सीखेंगे, ज्यादा ठीक रहेगा. और ये तो जैना ने चालू की है पूरी कर्म की थ्योरी, एंड इट इज आल्सो अवेलेबल इन यूट्यूब आल्सो. और इसके रिकॉर्डिंग भी आपको वापस मिल जाएंगे. आप 2 बार 3 बार जो है सुनेंगे, स्टडी करेंगे तो आपको और ज्यादा डिटेल में स्टडी हो जाएगी. अब महावीर कह रहे हैं कि अगर कर्म शास्त्र आपको समझ में आ जाएगा तो इसी पर धर्म शास्त्र की व्यवस्था है. अब हम धर्म करेंगे किस तरीके से? कर्म क्षय करने का साधन जो है वही धर्म है. अब आप पर्यूषण आए, दक्ष लक्षण पर्व आए, 8 दिन की 28 की, 30 दिन के मासिक श्रमण किया, वॉट एवर यू आर डूइंग, सारा ही धर्म हमारा ला करके यहाँ आप किस कर्म की प्रकृति का क्षय करने के लिए कर रहे हो, आप कितने कर्मों का क्षय करने के लिए कर रहे हो. आज एक उपवास का भी पचकान लेते हो तो आप पर्टिकुलर फोकस करिए, मैं मेरे कसाय मोहनीय कर्म का क्षयोपशम करने के लिए आज उपवास करता हूँ. फिर हमारा प्रतिक्रमण, फिर हमारी सामायिक, फिर हमारी दर्शन पूजा भक्ति, ये सब आकर के कर्म थ्योरी पर ही आपको डिपेंड होना है. हम कर्म क्षय के लक्ष्य से धर्म कर रहे हैं. दैट अल्टीमेट गोल इज दैट. क्यों कर्म का क्षय करना है? कि जिन कर्म के आवरण के कारण हमारे गुण अंदर ढक गए हैं तो हमको उन गुणों को वापिस अंदर से प्रकट करना है. इसलिए मैंने जरा 2 भाई साहब को रिक्वेस्ट की. आपने बोला आपको क्या लगेगा कि हमारा ज्ञान गुण अंदर है और वो इस ज्ञानावरणीय कर्म के आवरण से ढक गया है. जो हमारा दर्शन गुण अंदर है वो इस दर्शनावरणीय कर्म के आवरण से ढक गया. दिस इज वन टाइप ऑफ लेयर, एक कोटिंग हो गई है. अब यहाँ पर ये हमारा मोहनीय कर्म है, तो मोहनीय कर्म ने क्या कर दिया है? हमारे अंदर के चारित्र गुण को अंदर बिल्कुल ढक दिया है. एक गुण आत्मा के जो जैसे गुण हैं इन गुणों को अंदर ये ढक करके एक कर्म का लेयर बन गया है.
अब हमारा काम है कि हम पहले कर्म थ्योरी को भी स्टडी करें। कर्म को समझेंगे तो हमको पर्टिकुलर ख्याल आ जाएगा कि ड्यू टू दिस कर्म आई एम सफरिंग, ड्यू टू दिस पर्टिकुलर कर्म आई एम सफरिंग इन दिस वे। तो ये हमको थोड़ा अंदर ख्याल तो आना ही चाहिए ना। हम डॉक्टर के पास भी तो जाते हैं, whatever type of disease, why we are suffering from some disease, so डॉक्टर वापस उसका डायग्नोसिस करेंगे। अब डायग्नोसिस करने के लिए किसी को एमआरआई करनी पड़े, किसी को जो है सोनोग्राफी करनी पड़े, किसी को एक्सरे निकालना पड़े, whatever it may be। अब उस मेथड के अंदर जाकर के आपको एमआरआई करने से भी अंदर का हर चीज डिटेल में पता चल रही है। ये हम कर्म की थ्योरी समझ रहे हैं, तो कर्म की थ्योरी में आत्मा का एक्सरे हो रहा है, वो आपके फिजिकल शरीर का एक्सरे हो रहा है। शरीर के अंदर बोन्स आपके किस तरह से या कहाँ कैसा है उसका एक्सरे हो रहा है। तो कर्म थ्योरी या आपके आत्मा का एक्सरे करके आपको आत्मा के बारे में डिटेल समझा रही है। लेकिन बेसिक पहले हम आत्मा को समझ तो ले, आत्मा को जान तो ले, आत्मा ऐसा है, आत्मा ऐसे गुण वाली है, इन गुणों से, इतने गुणों से, इतने प्रमाण में गुणों से। अब उनके ऊपर कैसा लेयर लगा है, अब ये क्यों लगा, कैसे हुआ। कोई कार्मिक एटम्स बाहर से अपने आप तो नहीं आएंगे सर, कार्मिक एटम कोई बाहर से अपने आप नेचुरली तो नहीं आएंगे, आत्मा खुद होकर के लाएगी तभी, क्योंकि आत्मा ही करता है। बाहर के कार्मिक एटम्स वो तो जड़ भूतगल के परमाणु है, वो तो आने वाले नहीं है। आत्मा कुछ ऐसी क्रिया प्रवृत्ति करेगी, अब वो बाहर से खींच करके लाएगी अंदर। अब क्यों लेती है ऐसा, क्यों ऐसा करती है आत्मा, खुद ही लेकर खुद ही कर्म के बंधन से बंधती है और खुद ही दुखी हो रही है। ये सारी बातें हमको बहुत अच्छी तरह से इसमें डिटेल में स्टडी करनी है। We will try to understand. I will try my best to make it more easy and simple. आप समझ सकते हो। Now it is open for discussion, so anybody can ask the questions about this. I can make very clear. You see. जी मथेन मंदामी बाप जी। सो बात यही है कि हम खुद ही हमारे आत्मा के सुख के और दुख के कारण हैं। आज का शायद सार इस सेंटेंस में हो सकता है। और क्वेश्चन इस पे ये है पहला वाला कि प्लीज एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ब्रेन एंड माइंड। ये क्वेश्चन पूछा है प्रेयस शाह जी ने। प्रेयस जी अगर आपका कैमरा ऑन है, आप हैंड रेस कर दे तो मैं आपको आगे ले आऊं। आई कैन पिन यू। हाँ जी, ब्रेन इट इज द ऑर्गन ऑफ बॉडी। इधर देखिए, द ब्रेन इज टोटली डिफरेंट थिंग, इट इज ओनली द ऑर्गन ऑफ द बॉडी। अब ये क्या है, ऑल दीज 5 सेंसेस, सपोज व्हाटएवर यू आर लुकिंग हियर, द ऑप्टिक नर्व्स विल गो टू द ब्रेन एंड इन द ब्रेन देयर इज सम मैकेनिज्म देयर। अब ब्रेन के सेल जो है वो एक्टिव होते हैं, यहाँ से जाकर के जो ब्रेन में जाएगा, लेकिन ब्रेन में खाली एक मैकेनिज्म है, बट द सोल विच इज ऑलरेडी स्प्रेड इन द होल बॉडी, एवरीवेयर इन द बॉडी। अब तो आकर के वहां से ब्रेन से आएगा, तब जाकर के वो आपके अंदर आएगा। अब यहाँ अंदर आएगा तब ये पहले दर्शन का विभाग है और फिर ये अंदर ज्ञान का विभाग है। तो यहाँ से जैसे ही दर्शन में जाए फिर ज्ञान में आए। अब ब्रेन के बाद में वो यहाँ से जब जाए तो माइंड भी इन्वॉल्व हो जाए। अब माइंड भी इन्वॉल्व हो जाए तो आपके सोचना विचार करना भी साथ में जुड़ जाएगा। लेकिन ब्रेन इज नॉट सोल,
सोल इज नॉट ब्रेन। जब सोल छोड़ जाती है, शरीर को छोड़ के निकल जाती है आत्मा, तो ब्रेन तो ऐसे ही पड़ा है हमारे पास। जब हम अग्नि संस्कार करके जला देते हैं तो कोई इसमें से ब्रेन कोई अलग निकाल के रख नहीं लेता है, वो साथ में ही चलता है। एंड आफ्टर द डेथ, अगर हमारी मृत्यु के बाद हम ब्रेन का डिसेक्शन करें, आप जो है न्यूरोलॉजिस्ट के पास जा करके देखिए, अब वो डिसेक्शन करेंगे, देयर विल बी नो चिप्स इनसाइड, नो नॉलेज इनसाइड, नथिंग एट ऑल। इसलिए ब्रेन को भी फिजिकल ऑर्गन कह करके शरीर के साथ ही जलाया जाता है। आत्मा शरीर छोड़ करके चली जाएगी। जब आत्मा इसमें से निकल जाएगी तो ये तो ब्रेन की जगह पर रहेगा। अब आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, जब निकल गई अंदर से, अब आपका शरीर जो जिस प्रकार से जैसा है ये वैसा रह जाएगा। अब इस शरीर को क्या करेंगे साहब? अब न तो इसको रख सकते हैं, न कुछ कर सकते हैं, तो आपको ले जा करके अग्नि संस्कार में, अंतिम क्रिया में जला के राख करना ही पड़ता है। हाँ बोलिए सर। प्रेस जी, जिसका प्रश्न था उनको ख्याल हो। प्रेस जी, आर यू सेटिस्फाइड? मैं उनको यहाँ देख नहीं पा रही हूँ गुरुदेव। मैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ती हूँ। अगर प्रेस जी आप होंगे बाद में आगे फॉलो अप करना है तो बताइएगा। नेक्स्ट हेमंत जैन जी का क्वेश्चन है कि हाउ क्लोनिंग फिट्स इन दिस? इज क्लोन्ड जीव अनदर आत्मा? बिना जीव आए क्लोन भी नहीं बनेगा। शरीर में आत्मा नहीं आएगी तो शरीर बनेगा ही नहीं। क्लोनिंग इज आल्सो डिफरेंट सिस्टम है। उसकी योनि तैयार की जाती है, उसमें एक जीव आकर के अपना शरीर धारण करके फिर ही वो शरीर बना करके आगे व्यवहार करेगा। अब जीव को बनने के लिए 84 लाख जीव योनियां, अब उसमें से वो पर्टिकुलर योनि तैयार हो जाएगी तो जीव आएगा, उसमें अपना शरीर बना लेगा। आप कितने भी बनाते जाओ, बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हेमंत जी, आपका सेटिस्फेक्शन हुआ है? यू वांट? नहीं, तो मेरा मेन क्वेश्चन ये था कि जब ह्यूमन लोग अपना क्लोनिंग कर रहे हैं तो दूसरी आत्मा कहाँ से आती है? मतलब अपन तो कंट्रोल नहीं करते उस आत्मा को लाने का। संसार में देयर आर द इन्फिनिट नंबर्स ऑफ द सोल। एक आलू प्याज में भी अनंत आत्माएं हैं। एक एक आलू प्याज, लहसुन, गाजर, मूला, शकरकंद, सूरन, ये पोटैटोज वगैरह, इट कंटेन्स द इन्फिनिट नंबर्स ऑफ द सोल। आप जैसे ही उसको उत्पन्न होने के लिए तैयार हुआ तो उसमें तुरंत जीव आएगा। जीव तो संसार में तो बिना शरीर के तो जीव रह ही नहीं सकता है। तो जीव को तो उत्पन्न होने के लिए साधन मिल गया तो शरीर में आकर के जीव रहना शुरू हो जाएगा। नहीं, पर क्वेश्चन मेन ये है कि ह्यूमन अपन लोग आदमी लोग क्लोनिंग कर रहे हैं तो अपने कंट्रोल में आत्मा को लाना नहीं होना चाहिए ना। वो आत्मा तो अपने आप आएगी। तो क्लोनिंग करने से मतलब अपने को कंट्रोल मिल गया क्या उसका? नहीं सर, आपने क्लोनिंग तो फिजिकल स्ट्रक्चर का किया है। फिजिकल स्ट्रक्चर तैयार हो गए तो आत्माएं तो आएगी, अनंत आत्माएं संसार में तो आपके कंट्रोल में नहीं है। यू आर मेकिंग ओनली द फिजिकल स्ट्रक्चर। तो वहां तो उत्पत्ति योनि तैयार हो गई तो जीव को तो आना ही आना है। नहीं आएगा तो फिर उसके अंदर लाइवनेस कुछ भी नहीं आएगी। अच्छा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कोकिला जी का। व्हाट इज मीन्ड बाय अगुरु लघु? अगुरु लघु को थोड़ा सा और एक्सप्लेन। Guru Laghu, and the sense Guru is the heavy and Laghu is the light. So the Atma is not the heavy and Atma is not the light, it's the weight. So there is no weight for soul. But after doing that karma, there is weight, there is small, there is big, there is huge. ये सब उसका व्यवहार चलेगा आगे। पर्टिकुलर टेक्निकल वर्ड्स जो टर्मिनोलॉजी जैनिज्म की है, महावीर ने यूज किया कि भी आत्मा अगुरु लघु है, ऐसा। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन रश्मि जी को मैं अनम्यूट करती हूँ। रश्मि जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। रश्मि शाह।
Can you unmute yourself? Go ahead. नहीं, आप अभी भी म्यूट पे है रश्मि जी. गुरुजी, आत्मा अरूपी है तो उसको फील कैसे करे? आप फील आत्मा कर, अरूपी है तो उसको फील कैसे करे? अरूपी है तो खाली दिखाई नहीं देगी ना, रूप रंग तो नहीं दिखाई देगी. तो आत्मा सुख दुख से आप फील कर सकते हो, इमोशन से फील कर सकते हो, हर्ष शोक से फील कर सकते हो, राजी नाराजी से फील कर रहे हो. आप रेगुलर प्रतिदिन कर रहे हो. If you are not looking the air, but the air is touching to your skin, so you are feeling that yes, there is this air. Same like that, आत्मा है तो आत्मा को आप फील कर रहे हो. आपके ज्ञान में, दर्शन में, वेदना में, पीड़ा में, सेंसेशन के अंदर, इमोशंस के अंदर, ये कौन कर रहा है साथ? हंसता कौन है, रोता कौन है, चिल्लाता कौन है, राजी कौन होता है, नाराज कौन होता है, ये कौन हो रहा है सब? आप देखेंगे रोबोट अपने आप में कोई फील नहीं कर रहा है, तो प्रोग्राम के हिसाब से चलेगा. रोबोट कोई इमोशनल चीजें नहीं बता रहा है. हाँ, समझ में आ गया. अगला क्वेश्चन चंद्रा कुमार जी जैन, अगर खुद को अनम्यूट करेंगे, उनको क्वेश्चन पूछना है. चंद्रा कुमार जैन, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? मुझे आप नहीं दिख रहे हैं. उनको कॉन्वर्सेशन करके ही पूछना है क्वेश्चन, सो दैट्स कौन से नाम से आप लॉग इन हैं? आई डोंट नो, अभी देखते हैं, फिर से उनका नंबर लेंगे. तब तक प्रेयस जी, आपको फिर से कुछ पूछना है? गो अहेड. प्रणाम गुरुदेव. पहले हमने आपसे पूछा था ब्रेन और माइंड में क्या डिफरेंस रहता है. आपने जो बताया वो तो हमारी समझ में आया कि ब्रेन इज पार्ट ऑफ द बॉडी एंड इट इज अजीब एंड इट इज नॉट एसोसिएटेड डायरेक्टली विद द सोल. तो फिर हाउ डज द माइंड कनेक्ट द ब्रेन टू द सोल एंड वाइस वर्सा? और mind is totally absolutely different thing from the brain. Mind is totally separate from the soul also. So this is the atma, and atma had taken the audaric vargana pudgal parmanu. See, this is the audaric vargana pudgal parmanu, and due to taking this type of audaric vargana pudgal parmanu, when it becomes make the body, the brain is become as the organ of the body. Now the different मनोवर्गणा के पुद्गल परमाणु, ये है मनोवर्गणा के पुद्गल परमाणु. अब ये लेकर के आत्मा ने मन बनाया है. So mind is one type of device, which it is only one type of device. So through the help of the mind, the soul can think. So all the thought waves are coming. It is only due to this type of device. So mind is one type of device. Brain is an organ of the body. It is made by the औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु. लेकिन दोनों का कर्ता कौन है? वो है चेतन आत्मा. वो लेगा, बनाएगा, तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा. So does the mind remain attached to atma like karmas, or that one is also destroyed when the yes, it is like the karma. It is attached with your soul, but when you are using it, then you have to take the manovargana pudgal parmanu. Immediately, due to that mechanism, the mind will be prepared. You will think over it and just remove the all manovargana pudgal parmanu. We are using every moment. We are taking this audaric vargana pudgal parmanu also. We are making our body. We are living with this body. Same so like that. So just like karmas, the mind would also over time would just disappear and start to think something different. Yes. Okay, thank you very much. Pranam.
ओके, चंद्रा कुमार जी, मैं आपको देख सकती हूँ। हाँ जी, गो अहेड। हाँ, मैं अनम्यूट हो गया हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि नाम कर्म, गोत्र कर्म और आयु कर्म, इन तीनों कर्मों का जो हमारे जन्म के पहले जो हमारा बैलेंस था, जिस तरह के कर्म हमने बांधे हुए थे, उसके आधार पर हमको ये जन्म मिल गया। तो इस जन्म में उसके आधार पर हमारे शरीर की रचना बनी, सुंदर कुरूप जो भी, और हमारा किस परिवार में, संस्कार में, किस उसमें होगा, गोत्र कर्म भी बना, और हम उतनी आयु बांध कर आए। तो हमारे जन्म लेने के बाद क्या इन तीनों कर्मों का बैलेंस जो भी हमारा था वो सब यूजअप हो गया है? और अगर नहीं हुआ वो यूजअप, तो अब हम उन कर्मों को अगर काटते हैं तो उसका परिणाम क्या होगा? और अब जब हम जितना कार्मिक बैलेंस हम लेके जाएंगे, तो हमारी मृत्यु के बाद जो हमारे इन तीनों कर्मों का बैलेंस होगा, उसके आधार पर हमें अगला जन्म मिल जाएगा? हाँ जी, इसके अंदर हमारे पास बंधे हुए ये कर्म जो है, अब ये नाम कर्म के अंदर ये प्रकृतियां हमारे पास जो बंधी हुई है, ये बहुत कई सैकड़ों जन्म की बन गई है। गोत्र कर्म की हमारे यहाँ पर ये बन गई कर्म प्रकृति, तो इसके अंदर भविष्य के सैकड़ों जन्म की बन गई है। तो आप तो अभी खाली रनिंग लाइफ जो अभी आप जीवन जी रहे हो, ये तो एक है इसके अंदर की। अभी तो लाइन सर आपके अंदर बहुत बाकी है, तो कई जन्मों के आपको नेक्स्ट लाइफ भी तो लेनी है, आगे उसके बाद थर्ड लाइफ लेनी है। अब आयुष्य कर्म ये हमारा अलग है। आयुष्य कर्म आज का आपका है, कितना लिखूं आपका? 100 जो भी आपका आशीर्वाद। हाँ जी, 100 ईयर्स की आप लाइफ पूरी करेंगे, लेकिन बाकी के सब कर्म तो पूरे नहीं हो रहे ना। Only Ayushya is finished. What about all other karmas? There are the 8 karmas. Ayushya is only the one karma. अब वो लेके जाएगा। यहाँ आपके अंदर ये नाम कर्म के अंदर गति नाम कर्म आएगी। ये गति आपको पर्टिकुलर किस गति में ले जाना है। यहाँ आपका ये वेदनीय कर्म है। अब ये वेदनीय कर्म की टाइम लिमिट कितनी है? अब लाखों करोड़ों वर्षों की है, और you are living only for here 100 years. So what about all other karmas? It will come just carry forward in the next life. Again it will carry forward in the third life, fourth life, fifth life. There are the numbers of life. आपके आते ही रहेंगे, आगे चलते ही रहेंगे। तो ये जो नाम कर्म, गोत्र कर्म और जो आयु कर्म है, तो ये लाइक ऐसे बैंक अकाउंट चलते रहते हैं कि हमने जो नए बांधे वो उसमें जमा हो जाएंगे, हमने जो उनको यूज करके और ये जन्म ले लिया, उसमें कुछ कर्म हमारे यूज हो गए हैं, और नए अगर हम काटेंगे तो उसमें से कम हो जाएंगे और उसमें जुड़ते जाएंगे, और उस आधार पर हम अगला जन्म लेते रहेंगे। बिल्कुल सही बात है आपकी। खाली आयु कैसे बने? जी, आप खाली 3 दामी न 3 ही कर्म के नाम मत लो। One side is only Ayushya karma, and another side the all 7 karmas. It just carry forward to the next life. Just like आपका बैंक अकाउंट की तरह से ही चल रहा है। क्योंकि अभी मैंने कहा कि आपका आयुष्य कर्म सिर्फ 100 साल का है, but what about other karmas? अभी ये कर्म 1 लाख साल का, ये 10 लाख बरस का है, ये 10 करोड़ बरस का है, 20 करोड़ बरस का है, 50 करोड़ बरस का है, ये 100 करोड़ बरस का है। फिर इसका क्या होगा? अब 100 बरस की लाइफ के साथ ये सब हिसाब पूरा तो नहीं हो सकता है ना। सो दैट्स व्हाई इट विल कम ऑन द नेक्स्ट लाइफ। इट विल जस्ट कैरी फॉरवर्ड इन सो मेनी लाइफ। अभी हमारे यहाँ पर विपाक सूत्र, एक आगम शास्त्र के लेक्चर्स एवरीडे चल रहे हैं। उस विपाक सूत्र में ये 45 आगम जो है, हमारे 45 आगम्स के अंदर 11वां अंग सूत्र है। So Gautam Swami is asking to the Mahavir Swami, and Mahavir Swami is giving the proper answer. तो मृगा पुत्र है, तो हे भगवान ये कितने जन्मों तक चलेगा इसका कर्म? अभी एक अभग्न सेन कुमार चोरी करके चोरी के पाप में पकड़ा गया, तो महावीर स्वामी को गौतम पूछ रहे भगवान ये कितने जन्मों तक चलेगा? तो भगवान महावीर उसका उत्तर दे रहे हैं
और मैं ये सविता जी आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि यहाँ जो हमारे डे टू डे एवरीडे लेक्चर्स चल रहे हैं ऑन द विपाक सूत्र, तो हमारे यहाँ पर एक किंतु भाई है, वो रोज रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब पर अपलोड कर रहे हैं। इट इज अवेलेबल ऑन द यूट्यूब। आप उसमें से विपाक सूत्र के लेक्चर्स भी रोज सुनेंगे तो उसमें भी कर्म की थ्योरी समझाई जा रही है। बस ये है कि वहां भी तो एग्जाम्पल चल रहे हैं। नाउ वी आर स्टडिंग हियर ओनली द थियोरिटिकल फॉर्म, बट इन विपाक सूत्र महावीर स्वामी से सम एग्जाम्पल। अब वहां पर किस जीव ने कौन सा कर्म बांधा, कैसा कर्म बांधा, कितना कर्म, कितने जन्म के कितने भाव चल रहे हैं, कितने जन्म बीतते जा रहे हैं, वो उसमें थोड़ा सा डिटेल में है। आप चाहें तो आप लोग जो है यूट्यूब पर सुन सकते हैं, इट इज अवेलेबल देयर। जी, आई वुड एनकरेज एवरीबडी कि आई नो हमारे पास टाइम कम होता है, सैटरडे को क्वेश्चंस बहुत होते हैं हमारे दिमाग में, तो ये जो लिंक चैट में दी हुई है गुरुदेव श्री के 7 दिन के लेक्चर्स की, एंड इट्स अवेलेबल ऑन यूट्यूब। तो आप अपने अपने सहूलियत के हिसाब से जब भी आपको टाइम है, यू डोंट हैव टू सिट देयर, इट्स ऑन यूट्यूब, तो उस हिसाब से डेफिनेटली सुनिएगा कि वो पूरा ये जो हम अभी ऊपर ऊपर थोड़ा सा टाइम के वजह से कर रहे हैं, उसमें सारे डिटेल्स है, तो आप डेफिनेटली सुनिएगा। आई एनकरेज एवरीबडी टू डू दैट। Not only to listen, but the person, those who want to join the class, you see on the Zoom it is available, and you can come on the live also, you can ask the question. There are different subjects are there, no doubt, but if interested people, they can join. जी जी जी, आज क्वेश्चंस काफी आए हैं, हम टाइम के हिसाब से अभी 1-2 और ले लेते हैं। प्रीतेश जी, आई विल कम टू यू आफ्टरवर्ड, आफ्टर दिस क्वेश्चन। आसो सुद 3 करके इनका नाम है, ये पूछ रहे कि आत्मा इज सो पावरफुल विद ज्ञान दर्शन एंड चारित्र्य, देन व्हाई इट इज रिसीविंग अट्रैक्टिंग ऑल दिस कर्मा आइटम्स। अब ये नेक्स्ट क्लास में आगे आएगी ऑलरेडी, इट इज वेरी डिटेल, विद इन 1 hour आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। यू सी। अच्छा, प्रीतेश जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। ओके, गो अहेड। Pranam Swami ji, Pranam Gurudev. So it is very clear that Ananta Gyan is covered by Jnanavarni Karma. It is clear that Anant Darshan is covered by Darshanavarni Karma. तो ऐसे ही जैसे अघातिया कर्म है, तो वो करस्पॉन्डिंग, जैसे अगुरु लघुत्व का आपने बताया, राइट, न लाइट न हैवी, तो वो एक बार थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे जो अघातिया कर्म है वो किस करस्पॉन्डिंग गुण को कवर करते हैं, थोड़ा डिटेल में, एंड द कोरिलेशन बिटवीन देम। Aghati and Ghati, what type of this division and why this division, you see, which are the main gunas Atma, Jnana, Darshan, Charitra, that is called the Ghati Karma. The गुण है और उन गुणों का जो घात कर रहा है तो वो घाती कर्म है, और उसकी डिटेल स्टडी आगे हम करेंगे। Now these are the 4 अघाती कर्म। अब इन अघाती कर्मों के अंदर ये आ गया है पर्टिकुलर नाम कर्म। ये दूसरा जो है इसका नाम दिया है गोत्र कर्म। अब ये तीसरा जो है इसका नाम दिया है वेदनीय कर्म, और ये चौथा जो है ये आयुष्य कर्म है। अब इसका अघातीय नाम क्यों दिया है कि ये आत्मा के मेन गुण ज्ञान दर्शन चारित्र आदि को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हैं। इधर आपके अनंत ज्ञान दर्शन सब इधर आ गए, तो ये उनको नहीं टच कर रहे हैं। ये नाम कर्म क्या करेगा? शरीर बना देगा, इंद्रियां बना देगा, जाति बना देगा, गति बता देगा, आपको अलग अलग जाति में भेज देगा, वहां का शरीर बन जाएगा। और गोत्र कर्म पर्टिकुलर आपको किस घराने में, किस खानदानी में, किस कुल में, किस वंश में, उच्च में, नीच में, ये इसका फंक्शन, इसका काम कर देगा ये। अब ये क्या वेदनीय कर्म, आपको फिजिकल फिटनेस देना है या डिजीज और बीमारी देना है साहब? आप निरोगी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, या रोग बीमारी से जीवन जिएंगे साहब? ये इस कर्म का काम। और आयुष्य कर्म, दिस इज ओनली फॉर लाइफ स्पैन, ओनली फॉर सम इयर्स।
एक बार जन्म लिया, एक बार शरीर जो धारण कर लिया, आप कितने वर्षों तक इस शरीर में रहेंगे, वो आपका जीवन तो लाइफ स्पान जो है उसी का काम है। तो 4 देखे आपने, ये चारों अघाती कर्म हुए, तो ये आपके ज्ञान दर्शन चारित्र आदि को टच नहीं कर रहे। ये इतना सा जो है यहाँ के 4 विभाग हो गए। अब इनकी डिटेल हम जब समझेंगे, इसके अंदर भी अच्छे बुरे शुभ अशुभ कितने कैसे, अब वो इस डिटेल के अंदर आगे हमारी क्लास में आएंगे। गुरुदेव अभी टाइम है और एक आध क्वेश्चन का 2 लीजिए साहब। तो एक ये पता नहीं नाम नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर, आईफोन करके है सिर्फ। संगी पंचेंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय को बाहर से कैसे पहचाने, और मन शरीर में कहाँ स्थित होता है? मन शरीर के अंदर पूरी बॉडी में सर्वत्र स्प्रेड साइमल्टेनियसली एंड सिमिलर टू द सोल। जैसे आत्मा पूरी शरीर में बॉडी के अंदर सर्वत्र है, वैसे ही मन भी उसके पैरेलल, पैरेलल का मतलब समांतर रूप में फुल बॉडी के अंदर साथ में। अब रही बात संगनी पंचेंद्रिय और असंगनी पंचेंद्रिय, हम बाहर से नहीं पहचान सकते हैं, बिकॉज बाहर के अंदर दोनों समान है। 5 senses are commonly for both. If it is asangni, there are the 5 senses. If there is a sangni, there are the 5 senses. You see, the 2 types of frogs. There are some different types of the fishes. अब उनके अंदर कौन संगनी है कौन असंगनी है, बाहर से पहचानना इट इज वेरी डिफिकल्ट। लेकिन अब मनुष्य के, गाय भैंस के, पशु पक्षियों के मलमूत्र आदि में या उनके शरीर के अंगों में जो उत्पन्न होते हैं वो असंगनी पंचेंद्रिय भी होते हैं सब। अब असंगनी पंचेंद्रिय है तो फर्क क्या है, दे हैव नो माइंड एट ऑल। सो इफ देयर इज नो माइंड दे कांट थिंक ओवर इट, but they have the 5 senses, and 5 senses are the organs of the body. It's a part of body. अब उनको अपनी तरह से थोड़े से जीवन में आयुष्य में जी करके आयुष्य पूरा कर देंगे। लेकिन महावीर ने ये जो डिस्टिंग्विश किया है, डिवीजन किया है, अब माइंड मिले एंड वो चिंता विचार कर सके तो वो संगनी है, नहीं माइंड है तो असंगनी है, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्म का संक्रमण और उपकर्षण होता है? बिल्कुल होता है, जरूर होगा साहब। लेकिन अब ये हमको स्टडी करने में 1 साल के बाद इसका नंबर आएगा, तब आप स्टडी कर पाओगे। तब तक तो हम प्राइमरी नॉलेज तो ले लें बेसिक रूप में। जी जी गुरुदेव। अच्छा पारुल जी, आपका ये क्वेश्चन, अब ये शायद आखिरी वाला क्वेश्चन होगा, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। Sahib ji, how do I explain Samurchim Jeevs to my children? Especially when I talk about Sangni Panchendriya and having no mind. So can you draw the Sangni, can you draw the picture of a Samurchim Jeev? For me also it is not possible how to draw, you say, because it is Sukshma. And for this answer, you see, if you want to study, then I will start the new subject of Jain biological, botanical, zoological science. If you want to study that Jain biological science, what type of jivas are, how many types of jivas are there, it will be again for the 1 year course. So can you say that I will start this Jain biology? But there are different numbers of the jivas. अब सूक्ष्म, संगनी, असंगनी और उसके अंदर समुच्चय है, ये सब हम, लेकिन ये आप जरूर समझेंगे। when we are passing the urine, we are passing the stools, so it comes from, it goes from our body, and if it is for the 1 hour after 48 minutes it is covered, you see like this, then there समुच्चय जीव will उत्पन्न। अब वो समुच्चय जीव उसी में उत्पन्न होने वाले हैं, ख्याल है आपको। इसलिए हम पहले उसको जो है किस तरह से डिस्ट्रॉय कर दें, वो हमारा हेतु था। अब यू आर गेटिंग द मिल्क फ्रॉम द बफेलो, और यू आर गेटिंग द मिल्क फ्रॉम द काउस और द गोट, यू सी व्हाटएवर, सो इट इज कमिंग फ्रॉम द एनिमल बॉडी। सो विद इन 48 minutes either you can boil it or you can store it in the cool form, you see.
So there should not be the other living beings can grow, you see that. अब वो जाकर के समुच्चय जीव उत्पन्न हो जाएंगे। अगर समुच्चय किसके हैं, पंचेंद्रिय के हैं, तो अब जीवों के विज्ञान के ऊपर ही हमारी धर्म व्यवस्था बनी हुई है, तो वो उसमें उत्पन्न होना है उन जीवों को जाकर के। अब ये होते ही सूक्ष्म है, तो जब जीव तो जीव ही रूप में है ना, आखिर है तो आत्मा ही है। अब ये आपने एक पॉट के अंदर यूरिन कलेक्ट कर लिया, अब ये यूरिन यहाँ पर इसके अंदर है, अब इसके अंदर आकर के ये समूर्छित जीव उत्पन्न हो गए। अब आप इसको कैसे तो देख पाएंगे, अब ये है इतने सूक्ष्म, आप कैसे देखेंगे? According to your request, I am just drawing the diagram here, but how can I explain this? These are, suppose it is not. So even there they are building karmas, Sahibji, because they don't have man. Because it is jiva, the soul is remaining in this also. This is also the body, so that we have given the samurchima, so this type of structure of body within that jiva. And if there is a jiva, it is also binding the karma. So without the karma, there may not be the physical structure, body and life and death and everything. Nothing will happen. कर्म तो कंपल्सरी है, कर्म के बिना जब निगोद में बांध सकता है तो ये तो समूर्चिम पंचेंद्रिय है। निगोद इज द एकेंद्रिय जीव, वनस्पति भी एकेंद्रिय जीव है, जीव जीव ही है, फिजिकल स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। जी साहब जी, तो मैं वो सच हूँ। लास्ट वाला क्वेश्चन, ये आईफोन वाले जिन्होंने हैंड रेज किया हुआ है, आप पूछ लीजिएगा। जय जिनेन्द्र सभी को। मेरा सवाल है, अभी आपने कहा कि मनोवर्गना आंखें शरीर में रहती है, पर मनोवर्गना शरीर के तो बाहर ही रहती है। जब हमारा विचार में शुभाशुभ कर्म किए तो उसी कारण तभी वो वर्गना कर्म में होती है। तो फिर हमारा द्रव्य मन तो हमारे हृदय के बीच में है जो बोलते हैं, तो अष्ट कर्म जो कमल का अष्ट कमल के रूप का है, तो वो द्रव्य कर्म के रूप से हुआ है। तो जैसे नाम कर्म हम बोलते हैं वैसे, तो फिर ये वो पता नहीं चलता है, वो कैसे? अगर तो अब देखिए, आपने दिमाग में कहां से मेमोरी में कुछ भर लिया है, दैट इज डिफरेंट थिंग। अब यहाँ पर आगम शास्त्र में ये स्पष्ट है कि ये बाहर जो है मनोवर्गना के पुद्गल परमाणु। अब ये मनोवर्गना के पुद्गल परमाणु आत्मा ने अपने इस मन पर्याप्ति नाम कर्म के आधार पर लिए। अब ये लेकर के इसने अपनी तरफ से जो मन को बनाया, अब ये मन बनाने के बाद में ये पूरी बॉडी के अंदर आत्मा के साथ में फैला हुआ है। कोई द्रव्य मन का मतलब इसी को हम द्रव्य मन कहते हैं। मनोवर्गना के पुद्गल परमाणु लेकर के जो माइंड मन बना दिया वही द्रव्य मन है। वो नॉट इन हार्ट, नॉट इन पोर्शन ऑफ द लोटस, कमल, हार्ट, कोई संबंध नहीं, कुछ भी नहीं। अब ये पूरी बॉडी के साथ है। When you are walking on the road, something is touching to your leg, you see, you are getting that sensation and immediately you are thinking on that. Because the soul, आत्मा प्रदेश भी पैर के तलिए में है और मनोवर्गना के पुद्गल परमाणु आत्मा के तलिए में है। अब आपको पैर के तलिए नीचे चलते हुए ठंडा गर्म स्पर्श हुआ तो इमीडिएटली आपको ये विचार आएगा, ठंडा है कि गर्म है कि क्या है। तो आप ये बोलेंगे हार्ट के अंदर द्रव्य मन है, तो फिर वहां पैर के सेंसेशन में कैसे हुआ? फिर क्यों विचार आया आपको? नॉट इट इज लाइक दैट। माइंड इज आल्सो पैरेलल, spread in the whole body, parallel like the soul, आत्मा के साथ साथ समांतर रूप में पूरे शरीर में फैला हुआ है। आप उसको हार्ट में, लोटस में द्रव्य मन वही पढ़ा है, ऐसा मत सोचिए आप। या तो आपने पढ़ा है तो वापिस पढ़ो, सही ढंग से पढ़ो। और भाव मन ये हो गया, जब विचार कर रहे हैं तो वो भाव मन है।
द्रव्य मन के अंदर मनोवर्गणा का पुद्गल परमाणु का पिंड बन गया। वही वो आपकी बात बराबर है, हम विचार करते हैं वो भाव मन है, वो द्रव्य मन है, वो कर्णान योग के शास्त्र से पढ़े है। अगर ऐसा नहीं होता तो भगवान की मूर्ति पर जो अष्टकमल का जो चिन्ह बनाते हैं मूर्ति के ऊपर है, वो सूक्ष्म है, हम देख नहीं सकते, लेकिन मूर्ति पर बनाते वो द्रव्य मनी के हिसाब से ही बताते हैं। तो फिर है ही नहीं, वैसी तो बात है ही नहीं, द्रव्य मन तो है। द्रव्य मन है, द्रव्य मन पूरे शरीर में आत्मा प्रदेशों के समांतर फैला हुआ है, उसी का नाम द्रव्य मन है। फिर वो प्रतिमा के ऊपर क्यों वो चिन्ह बताते हैं, तो वो प्रतिमा के ऊपर क्यों लगाते हैं? भगवान के शरीर की आकृति में यहाँ पर कमल का चिन्ह की तरह से हृदय की जो पासलियां है उसमें उपसा हुआ भाग है, बस उसको द्रव्य मन से आपने क्यों जोड़ा है मुझे मालूम नहीं है, कोई आगम में नहीं है, किसी शास्त्र में ऐसा कोई पाठ नहीं है। आप होवे तो मुझे जरा फॉरवर्ड कर दीजिए। आपने गोमट सार पढ़ा होगा, तो गोमट सार में वो लिखा है। अच्छा देखिए, अब किसी संप्रदाय की मान्यता मुझे मालूम नहीं। नो संप्रदाय की नहीं, वो तो जैन धर्म का ही ग्रंथ है, और तो उसमें तो फर्क आना ही, हाँ वो कर्णान योग में तो बहुत फर्क आता नहीं है। आगम शास्त्रों में कहीं पर भी ऐसा सेंटेंस इज नॉट अवेलेबल एट ऑल। अब आपको किस में मिल रहा है, तो ये संप्रदायवाद तो मैं बीच में नहीं ला सकता हूँ यहाँ पर, मुझे क्षमा करिए। आप जिनको पूछते, आप बड़े आचार्य श्री को पूछ लीजिए, मैं क्षमा मांगता हूँ। गुरुदेव, आपके सागर से भी गहरे ज्ञान में से हम लोगों को कुछ बूंदे मिल रही है, इसके लिए पूरी जैना की तरफ से, आप सभी धर्म सभा में उपस्थित बंधुओं भाइयों की तरफ से मैं आपकी सुखसाता पूछती हूँ, आपको खूब खूब धन्यवाद देती हूँ जो आप इतना बहुमूल्य समय हमारे लिए आपने निकाला है। आपकी आहार की, आपकी तपस्या की खूब खूब सुखसाता पूछते हैं बाप जी। मथेन मंदामी, हम बहुत सौभाग्यशाली है जो हम थोड़ा बहुत भी जो कुछ हम सीख पा रहे हैं आपके ज्ञान में से, इसलिए हम आपके बहुत आभारी हैं। आप सबको बहुत धन्यवाद है कि आप इतने लोग विदेशों से जुड़ करके आपकी जो क्यूरियोसिटी है और आप ये कर्म थ्योरी सीख रहे हैं, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आपके जैना में हजारों लोग हैं, तो कम से कम ज्ञान सब तक पहुंचने की कोशिश करिए। अब बहुत कम संख्या में लोग जुड़ते हैं। हमने यहाँ इंडियन लोगों को ना कहा है कि आप मत जुड़िए, ये वहां के लोगों के लिए उनको ही जुड़ने दीजिए। तो थोड़ा जैना में आप कर दीजिए कि भी सबको इच्छा हो तो एक सब्जेक्ट ऐसा है तो अच्छी तरह से स्टडी हो जाए सर, बहुत फायदा होगा सबके लिए। हाँ जी, नेक्स्ट सैटरडे जी अगले जी गुरुदेव, मैं महेश अंकल जी तक मैसेज पहुंचा दूंगी आपका। हम कोशिश करेंगे डेफिनेटली। आप सब लोगों से भी विनती है कि अपने फ्रेंड्स परिवार वालों को बताइएगा इस लेक्चर के बारे में डेफिनेटली, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़कर हम इसका लाभ उठा पाए, इस समय का और इस ज्ञान का लाभ उठा पाए यहाँ रहकर। मैं पहले तो गुरुदेव क्षमा प्रार्थी हूँ आपकी, अगर क्वेश्चन पूछते समय हमसे कुछ गलती होती है तो मिच्छामि दुक्कडम मांगती हूँ मैं आपसे, हम सबकी ओर से। कोई चिंता मत करिए, आप कोई मिच्छामि दुक्कडम की आवश्यकता नहीं है। ऑल हैव द गुड फ्रीडम टू आस्क एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। मेरे को उत्तर देने का आएगा तो मैं दूंगा, नहीं तो मैं क्षमा मांग लूंगा। नहीं जी, आप श्री का नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सर्वसाहुणम, एसु पंच नमकारो सर्वभावपणासनो, मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम सूर्यभद्राद्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा,
अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं प्रवक्ष्यामि, अरिहन्ते शरणं प्रवक्ष्यामि, सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि, साहु शरणं प्रवक्ष्यामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवक्ष्यामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। धर्म लाभ सबको बहुत बहुत आशीर्वाद।